Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and welcome back to the channel. In today's episode of MCQ series, we are going to solve the MCQ of the smallest chapter of your syllabus audit documentation. इससे छोटा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है एंड इसीलिए इससे ज़्यादा मार्क्स भी नहीं एक्सपेक्ट किए जाते हैं एंड एवरेज मार्क्स जो इसके आ सकते हैं पेपर में दैट इज़ 3 to 4. तो 3 to 4 में डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. अभी एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, कितने एमसीक्यूज बन जाएंगे. तो अराउंड 19-20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है एंड एक दो केस स्टडी है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वन. फटाफट सॉल्व करते हैं एंड लेट्स हेल्प यू गेट एग्जाम्शन इन ऑडिट. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला, dash refers to the record of audit procedures performed, audit evidences obtained, and conclusions reached. Audit documentation helps in recording audit procedures performed, audit evidences obtained, and audit conclusions received. So the answer is audit documentation. Which of the following is not a purpose of audit documentation? B पढ़ते हैं, to enable the engagement team to be accountable of its work, correct. To enable conduct of quality control reviews, correct. To enable conduct of external inspection in accordance with legal and regulatory requirements, correct. ये तीनों तो benefits है या advantages है या purpose है audit documentation के. To enable the engagement partner to be get rid of his responsibility, no, audit documentation does not help anyone get rid of their responsibility. Instead, it increases the responsibility. So A is the answer. It is not a purpose of audit documentation. Form, context, and extent of audit documentation is not dependent on. Size and complexity of audit is पे तो dependent है. Nature of audit procedures to be performed is पे भी dependent है. Audit methodology and tools to be used, this is also a dependent factor. Seniority of the person performing audit, no, this is not a factor क्योंकि यहाँ पे form, context and extent में experience का कुछ नहीं है. यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स है, साइज हो गया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हो गया, ऑडिट मेथडोलॉजी होगी. सीनियरिटी ऑफ द पर्सन डज नॉट डिफाइन द फॉर्म, कंटेक्स्ट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. Dash is a summary of significant matters identified during audit and the way they were addressed. हमेशा याद रखना, कंप्लीशन मेमोरेंडम का एक छोटा सा पार्ट है आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले ऐसे में लास्ट के टूवर्ड्स. बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो डोंट मिस इट. कंप्लीशन मेमोरेंडम इज द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एड्रेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द वे दे वर एड्रेस्ड. A company has started its manufacturing operations from a newly constructed building. CAZ is the statutory auditor of the company. Which of the following is not likely to be an example of audit documentation? Email correspondence with CFO of the company regarding significant matters, ये तो होगा ये audit documentation का part. Significant matters पे आपने communicate किया तो it helps understand any other person how the audit procedures were performed thereafter or what was the significant matter. तो ये तो होगा आपका audit documentation का part. Audit program, obviously ऑडिट प्रोग्राम के बिना कोई भी आपकी फाइल नहीं समझ सकता. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन, ग्रेट एविडेंस, इसको आप नहीं मिस कर सकते अपने फाइल से. किसी का भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हो सकता है, डेटर, क्रेडिटर, लोन, बैंक, अगर आप वो नहीं दिखाओगे तो जैसा कहा जाता है योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज एप्ट व्हेन अ सीनियर पर्सन, व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन स्टडीज योर ऑडिट फाइल एंड अंडरस्टैंड्स व्हाट यू हैव डन इन द ऑडिट. तो बिना एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नो वन विल बी एबल टू एप्रीहेंड और नो वन विल बी एबल टू जज कि जो आपने डेटर्स या क्रेडिटर्स का बैलेंस वेरीफाई किया वो सही है या नहीं है. Structural engineers report on the strength of building. This is not an example of audit documentation. इसको audit documentation में डालने की ज़रूरत नहीं है. CA Vijay is the statutory auditor of XYZ Limited for the financial year 21-22. During the process of assembling the audit files, CA Vijay briefed his team as to what all changes can be made to audit documentation at that stage. Which of the following changes cannot be made to audit documentation during the final assembly process? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इनका हो गया, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, ऑडिट हो गया, अब वो सिर्फ असेंबल कर रहे हैं फाइल को. तो असेंबलिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते. यहाँ पे पूछा क्या नहीं कर सकते हो आप असेंबलिंग में.
सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटेड टू फाइनल असेंबली प्रोसेस बिल्कुल कर सकते हैं। डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स करना ही चाहिए। रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये आप नहीं कर सकते, ये आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जब आप बना रहे थे तब रिकैलकुलेट करना था। जब ऑडिट खत्म हो गया, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, आप सिर्फ जब कोलेट कर रहे हो फाइल को या आप सिर्फ जब असेंबल कर रहे हो तो आप वापस कुछ भी रिकैलकुलेट नहीं कर सकते, वापस कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते। सो रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज a thing that cannot be done in assembly. Which of the following is not a likely purpose of audit documentation? It helps to show that audit was conducted in accordance with requirements of SQC1. करता है, बिल्कुल करता है. It serves as a record of matters of continuing significance to future audits. Correct. This is also a purpose. It assists engagement team to plan and perform audit. Correct. It can help ऑल्टर इन एक्सपैंडिंग क्लाइंट बेस, बिल्कुल नहीं. उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से कोई उसको ऑडिट देगा क्या कि ऑल्टर जा रहा है किसी से काम मांगने, वो बोलेगा देखो ये है, देखो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैं इतनी अच्छी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ तो मुझे काम दे दो. ऐसा होता है क्या? नहीं. सो दिस इज नॉट अ पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑल्सो अभी आप देख रहे हो पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी दूसरी बार आ गया है. तो ऑल्दो दिस चैप्टर इज मल्टीपल चॉइस बेस्ड, ऑल्दो दिस चैप्टर इज मोर ऑन द एमसीक्यू साइड, आपको याद सब करके रखना है वरना आप एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. Dash may be defined as one or more folders or other storage media in physical or electronic form containing records that comprise audit documentation for a specific engagement. Audit file may be defined as one or more folder. एक दो डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. जब आप ये सब असेंबल कर देते हो और एक फाइल में डाल देते हो तो उसको कहते हैं ऑडिट फाइल. An important factor in determining the form, context, and extent of audit documentation of significant matter is the extent of dash exercised in performing the work and evaluating the result. क्या आप एक्सरसाइज करते हो काम को परफॉर्म करते करते एंड रिजल्ट्स इवैल्यूएट करते करते? प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट, इसीलिए आपको रखा है और किसी और को नहीं, क्योंकि यू हैव द पावर टू जज एंड नॉट समवन एल्स. तो इसमें बहुत बच्चे लिख के आएंगे Q&A माइंड एक्सरसाइज करता है, ये करता है. नहीं, वो आप सिर्फ रिजल्ट इवैल्यूएट करते 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 हो. काम परफॉर्म करते करते आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो. आप Q&A माइंड कहाँ कर रहे हो? जब आपको एविडेंस मिल गया है उसके बाद आप उस पर जांच पड़ताल कर रहे हो एंड फिर उससे प्रोसीजर्स आ रहे हैं. पहले प्रोसीजर्स में आप नहीं कर रहे हो. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नॉट द आंसर, प्रोफेशनल जजमेंट इज द आंसर. Which of the following does not fall within the meaning of audit documentation? Record of audit procedures perform, audit evidence obtain, conclusion reach. ये तो audit documentation का definition नहीं है, तो ये तो तीनों आएंगे. Oral discussions not put into writing. तो भैया बातचीत जो तुमने लिखी भी नहीं है वो तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो बारे में आएगा, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है. सो दिस इज नॉट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. CAP has completed audit of a company and final audit file has been assembled. After about 2 years, in connection with some regulatory proceedings, he is asked to produce the copy of audit file. He again takes a fresh look at audit documentation and discards some paper. Which of the following statement is correct? तो यहाँ बोल रहा है कि CAP ने एक बार कोई ऑडिट किया था एंड उस ऑडिट को किए हुए 2 साल हो गए हैं. अब अचानक से उसके मन में क्या आया, उसने कुछ पेपर्स डिस्कार्ड कर दिए. अगर आपको याद हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फाइल आपको 7 ईयर्स तक रिटेन करना होता है. असेंबलिंग में भी हमने क्या बोला था, सुपर सीडेड पेपर्स डिस्कार्ड कर सकते हैं, एवं कोई पेपर्स डिस्कार्ड नहीं कर सकते. एंड दिस इज एप्लीकेबल टिल द रिटेंशन फाइल पीरियड. मतलब 7 साल तक आप कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करोगे, कुछ भी अचानक से ऑडिट प्रोसीजर ऐड नहीं करोगे. एंड आपको असेंबलिंग का भी जो फाइल मिलता है दैट इज ओनली फॉर द 60 डेज आफ्टर ऑडिट कंप्लीट. उसके बाद आपको ऑडिट फाइल छूना नहीं, उसमें चेंजेस नहीं करने हैं. So he can't discard the papers before end of retention file. ठीक है, आपका मन करेगा कि लिख देते ही कैन डिस्कार्ड पेपर्स, अब तो 2 साल बीत गए. नहीं, एक बार दैट 60 डेज का असेंबली प्रोसेस खत्म, एक बार दैट 60 डेज का असेंबली प्रोसेस एंड्स, फ्रॉम दैट पीरियड टिल 7 years आप ऑडिट फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करोगे. सो ऑलवेज रिमेंबर यू कांट डिस्कार्ड एनी पेपर्स. Which of the following is correct?
The auditor shall assemble the audit documentation and audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of audit report. The auditor shall assemble the audit documentation and audit file and shall not complete the administrative process of assembling the final audit file. तो आपकी फाइल कैसे कोई पढ़ेगा, तो ये तो इनकरेक्ट है. The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis before the date of audit report. The auditor shall not assemble, फिर shall not assemble. अभी यहाँ पे है कि ये after the date of audit report assemble करेगा या before the audit report assemble करेगा. तो अगर आपको याद हो 60 days from audit report, तो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप फाइल असेंबल करते हो, बिफोर नहीं करते. ठीक है, बिफोर के पहले तो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते जा रहे हो, तब आपको असेंबली का टाइम कम मिल रहा है. तो ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के बाद आप जो है ये फाइल असेंबल करते हो. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays and applicable legal and regulatory requirement. और नहीं होता, ये and होता है. दोनों चीज़ें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करता है. Evidence of the auditor's basis for conclusion about achievement of overall objectives of the auditor and evidence that the audit was planned in accordance with essays and applicable लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. इसको मुझे लग रहा है ये करेक्ट है, बट बाकी तो स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं. एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, प्लस अगर ये दोनों साथ में होता जो कि है बी में, तब ये करेक्ट होता. सिर्फ एक चीज नहीं इंश्योर करता, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दोनों करता. तो करेक्ट आंसर विल बी बी. CA Bobby is a recently qualified chartered accountant. He has been appointed as an auditor of Droopy Limited for the current financial year 17-18. He is quite conservative in nature, which is also replicated in his professional work. CA Bobby is of the view that he shall record all the matters related to audit procedures to be formed, audit evidences obtained, and conclusions reached. Thus, he maintained a file and recorded each and every of his findings during audit. His audit file, besides other thing, includes audit programs, notes reflecting preliminary thinking, letters of confirmation, emails concerning significant matters, etc. State which of the following need not to be included in the audit documentation. Audit program होना चाहिए, confirmation letters होने चाहिए, email concerning significant matters ये भी होना चाहिए, notes reflecting preliminary thinking ये आपसे किसी ने नहीं मांगा, तो this is not a part of audit डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम इज इम्पॉर्टेंट, पता तो चलना चाहिए आप कैसे ऑडिट अप्रोच कर रहे हो. कन्फर्मेशन लेटर इज इम्पॉर्टेंट कि कौन सा डेटर क्रेडिटर क्या आपको कन्फर्मेशन भेज रहा है. एंड ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Judging the significance of a matter requires objective analysis, subjective analysis, both subjective and objective analysis, qualitative analysis, only objective analysis. Which of the following is not an example of audit documentation? ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लो. ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है हम तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अलग अलग वेज से आ रहा है. वो CA बॉबी में भी यही था, ऊपर भी दो अलग अलग वेज से आए थे. ऑप्शंस चेंज हो जा रहे, क्वेश्चन सेम रह रहे. तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टर्म, क्योंकि 3 से 4 बार जब पूछा गया तो इट कैन बी एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. Which of the following is not an example of audit documentation? Audit program होता है, summary of significant matters होता है, checklist होता है. ऑडिट फाइल में तो सारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, तो वो कहाँ से एग्जाम्पल होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? तो ऑडिट फाइल इज नॉट एन एग्जाम्पल. An appropriate time limit within which to complete the assembly of final audit file is ordinarily not more than dash days after the date of audit report. अभी हम ऊपर 3-4 बार पढ़ के आ चुके हैं. असेंबली करना है तो 60 दिन में करना है. कितने दिन में करना है, कहाँ से करना है? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करना है. उसमें मैंने बताया कितने दिन में करना है, 60 डेज. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 2 दिन अच्छे से याद रखोगे. 60 डेज फॉर असेंबलिंग एंड 7 years फॉर रिटेंशन. ठीक है,
60 डेज आपको मिलते हैं, एंड ऊपर जो मैंने बताया था कि आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिलते हैं, ये भी वैलिडेट हो गया। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन में आप, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद 60 दिन में आप उस फाइल को असेंबल कर सकते हैं, उसको आप 7 साल तक रखोगे। 60 दिन के बाद आप उस फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करोगे, एंड इन 60 डेज ऑल्सो यू विल जस्ट असेंबल द ऑडिट फाइल, नॉट recalculate or not perform any audit procedure. The auditor may consider it helpful to prepare and retain as a part of audit documentation a summary that describes evidence identified during the audit, significant matters identified during audit and how they were addressed, significant evidence identified during audit, significant matters identified during audit. So the answer is B. You will also have to say कि वो कैसे address हुए थे या आपने उसके बदले क्या action लिया. So it should be significant matters identified during audit and how they were addressed. Which of the following statement is appropriately suited to the preparation of audit documentation? Audit documentation has to be prepared simultaneously as the audit progresses. Audit documentation has to be prepared 60 days after the date of audit report. Audit documentation has to be prepared when information is required by the regulator. Audit documentation is to be prepared 60 days after completion of work. तो ये जो 60 days है, इसमें तो आप सिर्फ असेंबल कर रहे हो। असेंबल किसको कर रहे हो? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। तो आपको तो 60 दिन के पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेना होगा। अभी जब रेगुलेटर मांगेगा तभी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लोगे क्या या बनाओगे क्या? नहीं, तब तो आप ऐसे 230 पूरा ही ब्रीच कर दे रहे हो। वो तो कह रहा है एज पर योर ऑडिट प्रोसीड आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड ये जो 60 डेज है, दिस इज फॉर असेंबलिंग। असेंबल कब होगा? जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे। सो दिस एंड दिस इज ऑल्सो wrong. Audit documentation has to be prepared simultaneously as the audit progresses. Which of the following is least likely to be included in audit documentation of company engaged in manufacturing and export of goods? मतलब इनमें से 4 चीज़ों में से क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं इंक्लूड होगा? प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड होगा। कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ में एंगेज है, ये तो इंक्लूड होगा। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन सपोर्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये भी इंक्लूड होगा। स्टेटमेंट शोइंग डिस्पैच ऑफ ओवरसीज कंसाइनमेंट इन अकॉर्डेंस विद डिलीवरी शेड्यूल्स ऑफ ओवरसीज बायर, ये नहीं इंक्लूड होना चाहिए, बट लेट्स जस्ट रीड द लास्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट शोइंग वेरिफिकेशन ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो ये तो इंक्लूड होगा। ये इज इररेलेवेंट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने ऊपर भी स्टैम्प मार्क कराया है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो केस स्टडी भी बन रही है, तो इसी अराउंड बन रही है कि इसमें से क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन सकता है। सो अच्छे से पढ़ के जाना व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, एंड केस स्टडीज तो जो मैंने कराई है एक बार इसको वापस रीड करके जाना। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं एज वी डू, बिना केस स्टडी पढ़े पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जाके केस स्टडी पढ़ेंगे। वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू वाज असाइंड टू मोहित इन ऑडिट प्रोग्राम, हाउएवर इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय रोहित एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है, मोहित को दिया था रेवेन्यू का काम, बट वो परफॉर्म कर रहा है रोहित। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वाज टू बी कैरिड बाय रोहित, तो ट्रेड रिसीवेबल दिया था रोहित को, एंड वो कौन कर रहा है? हाउएवर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय सीए रंजन पिल्लाई, तो ये परफॉर्म कर रहा है रंजन। ड्यू टू लास्ट मिनट प्रैक्टिकल इश्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेटिंग टू इन दिस रिगार्ड रिलेटिंग टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? एक चीज़ बता दो, अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो उसमें दिया रहता है कौन किसका काम कर रहा है या कौन क्या एरिया उठा रहा है। तो अगर आप ये सब चेंजेस कर रहे हो, कोई और काम कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट समवन एल्स इज अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। तो आपको वो सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करना होगा, बिकॉज एज यू राइट दैट दिस पोर्शन हैज़ बीन चेक्ड बाय हिम और समवन एल्स, तो फिर वो डायरेक्टली आता है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। तो अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोई और वो काम कर रहा है, तो आपको वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर देना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम contains the name of persons and work to be performed. It is immaterial whether work assigned by one person is performed by another. रॉन्ग, मैंने बोला ना, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, तो कल को कुछ गलत होगा, तो अब सपोज रेवेन्यू में कुछ गलत हुआ,
ठीक है, तो हम तो जाके मोहित को पकड़ेंगे, बट मोहित ने तो काम ही नहीं किया, वो तो काम रोहित ने किया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर चेंजिंग द पर्सन डूइंग द वर्क एंड द अकाउंटेबिलिटी इज चेंजिंग, द सेम हैज़ बीन noted by you or implemented in the audit documentation. Audit program has already been prepared. Only person assigned specific responsibility can perform those duties. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. It can ऑब्वियसली चेंज कुछ भी हो सकता है. इफ़ अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, कोई कंटिजेंसी आ जाती है, तो किसी और को तो करना पड़ता है. तो ये स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑडिट प्रोग्राम be suitably updated or the notes are given in the working paper to this effect so that planned duties are in accordance with actual performance. Correct. Changes in audit program or notes clarifying the matters are only required when a person not forming a part of audit engagement team is deputed to perform a duty. Otherwise, the issue of intershuffling of the team is frivolous. ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है. अगर कोई बाहर से आएगा तभी मैं चेंज करूंगा, क्यों भैया? मैंने तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया ना कि अगर रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ होगा तुम तो मोहित को जाके पकड़ोगे, पकड़ना है तो रोहित को है. सो अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको वो चेंजेस जो भी है इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए. एज रिगार्ड्स मटीरियलिटी, विच ऑफ द following statements is most appropriate in context of audit documentation? Materiality has already been determined. There is no need to put it into working papers. Materiality depends on professional judgment of the auditor. Whatever amount has been determined can be documented in working papers. Materiality arrived on the basis of professional judgment along with factors considered in determination has to be documented. Correct. आपको materiality सिर्फ लिख नहीं देना है कि इतना materiality determine हुआ है, आपको बताना भी होगा कि उसका basis क्या है, what are the procedures that you have performed, what are the considerations that you have taken into account, what are the judgments that you have applied. तो आपको वो सब चीज़ें document करनी होंगी. As regards team assessment, that risk of material misstatement is low. Which of the following statements is ऑड वन रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्क? यहाँ पे बोल रहा है कि टीम ने असेस किया कि रोमम लो है, तो इनमें से क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनने से भी चलेगा. डिस्कशन अमंग्स टीम मेंबर्स एंड डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. वो तो रोमम ज़्यादा हो या कम, वो तो डॉक्यूमेंट होना ही होगा. डिटेल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड. करेक्ट. ये भी कि आपने कैसे असेस किया कि रोमम लो है. डिटेल्स अबाउट हाउ understanding of details about how understanding of each component of internal control was obtained has to be documented. It also has to be documented. रोमम बड़ा कम हुआ, ये तीनों immaterial चीज़ें, सॉरी आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, ये तीनों are imperative parts, or you can say these are the things that will be required. रोमम ज़्यादा हो या कम हो, इमटेरियल नहीं, आई मेंट टू से इम्पेरेटिव. सो ये तीनों होगा ही होगा इन योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज इफ यू आर सेइंग रिस्क असेसमेंट इज लो और रोमम इज लो, सो यू विल ऑल्सो हैव टू पुट इट इन द डॉक्यूमेंटेशन कि कहाँ से आपने असेस किया कि ये रिस्क असेसमेंट या रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट कम है. So these three will have to become a part of the audit documentation. Precise calculation of risk of material misstatement has to be documented. This does not have to be, क्योंकि अगर आप risk assessment procedures document कर रहे हो, उसके conclusions draft कर रहे हो, तो it is automatically stated कि रोमम ज़्यादा है या कम है. CA Shobhit is responsible for attending physical inventory count of the company. Which of the following is not true in दिस रिगार्ड रिलेटिंग टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो वहाँ पे वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने जा रहे हैं. इन चारों में से क्या ट्रू नहीं है? डेट्स ऑन विच फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हैज़ टू बी dates on which physical inventory count process was attended by him should be documented. It may also include photographs of the date showing the attendance of physical inventory counting process at a particular location. Yes, ये document होगा. Details of test count undertaking should form a part of audit documentation. Correct. Details of obsolete goods should form a part of audit documentation. Correct. Reports showing that stock conformed to the quality control standards in accordance with law are essential part of ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. नहीं, ये जब भी आप पढ़ोगे इससे रिलेटेड ऐसे या जो आपका स्पेसिफिक आइटम्स वाला ऐसे होता है, ऐसे 501, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये जो स्टॉक है ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड से मिल रही है, आपको इसको डॉक्यूमेंट करना है. सो दिस इज इन द पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो अगर आप चारों चीज़ें पढ़ोगे यानी आपको ऐसे 501 याद होगा, तो ये तीनों ऊपर की जो तीनों चीज़ें ये आपने पढ़ रखी है, चौथी चीज़ें नहीं पढ़ रखी है. सो डोंट अप्लाई दैट एक्स्ट्रा ब्रेन यूर कि शायद मैं भूल गया. नहीं,
आपने नहीं पढ़ी है मतलब नहीं है. हैव दैट कॉन्फिडेंस. As regards related party transaction, which of the following should not be a part of audit documentation? Management representation letter obviously होना चाहिए. Management representation letter is one of our biggest evidence. उसके अलावा कौन कंफर्म करके देगा related party है या नहीं? Related party transaction of the policy, correct. Documents to show that transactions are at arm length price, correct. Documents to show that transactions are at क्लोज लेंथ प्राइस, ऐसा कोई प्राइस नहीं होता. दिस इज इनकरेक्ट. ये नहीं बनेगा आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट. एक ही होता है लेंथ प्राइस है, दैट इज आर्म लेंथ प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस, यानी जो नॉर्मल आपका ट्रेड प्राइस है उससे डील कर रहे हो. क्लोज लेंथ प्राइस इज नो वर्ड. सेकंड पे आते हैं. डैश इज अ फाइल कंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड डेटा दैट कॉम्प्रोमाइज sorry that dash is the file containing the records and data that comprise the audit documentation for a specific engagement. तो it's audit file, ये अभी हम ऊपर भी पढ़ के आ गए हैं. Audit file is a file containing the records and data that comprise the audit documentation for a specific engagement. Which of the following does not affect the form, context and extent of documentation? इसका भी हम ऊपर अभी सॉल्व करके आ गए. अब केस स्टडी में फिर से सॉल्व कर लेते हैं. साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी इंक्लूडेड होता है. नेचर ऑफ ऑडिट टीम who will perform audit not included. Identified risk of material misstatement included. Audit methodology and tools to be used included. So option B is the answer. If in exceptional circumstances auditor departs from the standards of auditing, he shall. अभी बहुत बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हो ही नहीं सकता. बिल्कुल हो सकता है. अगर आपको वो 3 स्पेसिफिक मैटर्स का बॉक्स याद हो कि ये 3 मैटर्स को आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट मैटर्स को आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो इसमें से एक था कि अगर ऑडिटर किसी स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए वो क्यों डिपार्ट कर रहा है एंड उस डिपार्चर के लिए उसने क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई है. डॉक्यूमेंट द रीजन फॉर डिपार्चर. डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव procedures were performed for achieving the objective. दोनों प्लस है, ये दोनों करता है, both A and B. ऑडिटर इज नॉट अलाउड टू डिपार्ट फ्रॉम एसेस. बहुत लोगों का मन करेगा ये आंसर दे, बट अगर आपको 3 पॉइंट्स याद है so you will have to tick C. Which of the following is not true of working papers? They record the audit evidence to provide support for the auditor's opinion. ये तो true है. They assist in review of audit work. True. They are direct aid in planning of audit. True. They provide a proof of correctness of financial statements. False. ये वो कोई ऐसा नहीं है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख लिया तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है. नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्योरली एन एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स work or audit procedures that the auditor has performed. It is not a proof that financial statements are correct or incorrect. Can CA Bean provide access to working papers to income tax department during the search and seizure operation? तो अगर आपको ownership of audit documentation याद हो तो audit documentation is the property of auditor, but he may make certain parts or certain documentation available to any statutory authority or any regulatory authority if they demand so, or can make extracts of his paper available to the client. तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले जब उससे पेपर मांग रहे हैं तो वो मना नहीं कर सकता, वो दे सकता है. ही हैज़ द राइट एंड अंडर ओनरशिप ऑफ ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो इट इज़ रिटन कि आप अगर कोई स्टैट्यूटरी या कोई लीगल अथॉरिटी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो आप दे सकते हो. CA Bean can provide as it is the requirement of law. मुझे तो ये करेक्ट लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं. CA Bean is guilty of professional misconduct. Wrong. CA Bean should not provide the working paper. तो इनकम टैक्स वाले कहाँ से चेक करेंगे, तो वर्किंग पेपर नहीं प्रोवाइड करोगे तो. None of the above. A is the answer. So that was it for today's video. छोटी वीडियो थी, around half an hour की, and बार बार मैं बोल रही हूँ ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन जो 3 से 4 मार्क का आता है दैट इज़ मोर ऑन द MCQ साइड. कुछ जो मैंने आपको स्टार कराया है वो देख के जाना, उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए इसीलिए. एंड केस स्टडीज़ भी ईजी थी, उसका हमने मल्टीपल चॉइस पहले सॉल्व कर लिया है तो वो भी आप
एक बार देख के जाना चाहो तो देख के जा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम इट, सॉल्विंग एवरी MCQ रिक्वायर्स यू टू स्टडी और टू गेट थरो विद द चैप्टर. तो अगर आप सोचोगे MCQs आ रहा है तो सिर्फ मैं MCQs पढ़ के चला जाऊँ या पढ़ के चली जाओ, सो इट वोंट लेट यू गो थ्रू कि चलो एग्जाम में कोई भी MCQ आया तो आप सॉल्व कर लोगे, ये MCQ आया तो चलो आपने कर लिया तो आप सॉल्व कर पाओगे. बट वॉट इफ समथिंग एल्स इज आस्क्ड, तो जस्ट बिकॉज इट इज़ एन MCQ बेस्ड चैप्टर, डोंट skip the chapter. Apart from that, if you like the video, do like, share, comment and subscribe. Until then, happy learning.